شعیب اختر نے جو ڈگ آؤٹ پروگرام میں بیان دیا ہے اس سے نعمان نیاز کو تو مجھے لگتا ہے پاگل کر دیا. میں پاکستانی فارماسیوٹیکل مارکیٹ میں میرے کافی سال گزارے ہیں, 22 سال گزارے ہیں. نعمان نیاز کو میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. وہ ہماری کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن پروگرام میں بھی آتا تھا. I mean, like, but respectfully, I have to say that I always felt that guy was a faker. And I don't know what was so good in him that PTV could not find. There were people like Chishti Mujahid and Ifti and all those other people who were very highly qualified people and who could have done a better job than Noman Niaz. But somehow, maybe his pedigree, being the son of a general or something like that, paved the way for him. Anyway, I'm not here to comment on Noman Niaz's credibility or his competence. I'm here to talk about what Shoaib Akhtar said. I remember I was, I think at that time, I was in Pakistan. I don't remember exactly when that big drama happened. Shoaib Akhtar اور نعمان نیاز کے درمیان میں, اور نعمان نیاز was very rude at that time. بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا نعمان نیاز نے. مطلب ہاں, لوگوں نے تو بعد میں یہ کہا جی کہ وہ شعیب ہمارا سٹار تھا اور سٹار کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور سٹار کو سٹار کی جو ہے وہ جگہ دینی چاہیے اور اس کو اس کی عزت دینی چاہیے سٹار کی. لیکن کوئی بھی بندہ جو ایک پروگرام میں آیا ہو اور ہوسٹ کا بنتا نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرے جیسے نعمان نیاز نے کی تھی. اور میرا خیال ہے کہ شعیب اختر نے وہ گرج جو ہے وہ اپنے دل میں کہیں رکھا ہوا ہے. شعیب اختر ویسے بھی تو ایک کیریکٹر ہے اور فلیم بوائنٹ کیریکٹر ہے شعیب اختر, اور اس کے اندر فاسٹ بالر جو ہے نا وہ کبھی نہیں مرا. وہ جب بھی بات کرے گا نا تو وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے. لیٹس لسن ٹو واٹ ہی سیڈ. تو میرے ٹائم پہ ایک تو مجھے پتا نہیں ہوتا تھا کوچ کون ہے, لٹرلی سچ بتا رہا ہوں. دوسرا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا مینیجر کون ہے. ہمیں یہ پتا ہوتا کہ ہمارے بیک کمرے میں پہنچے کہ نہیں مینیجر اس نے رکھا ہوتا تھا بھائی. تیسری بات یہ ڈاکٹر نواز نیاز ہمارے بیگ اٹھاتا تھا نا, تو ہم نے اسے پہلے دفعہ رکھا ہوا تھا, بیگ اٹھانے کے لیے رکھا تھا نا. تو یہ وہ کرتا ہوتا تھا, پتہ نہیں کمپیوٹر پہ کوئی لکھتا ہوتا تھا. اور یہ رات کو ہمارے جو پہلا اس کا ٹور میں ڈیٹا اینالسٹ کہا جاتا تھا, وہی پتہ نہیں کیا اینالسٹ تھا. بٹ لیکن مینلی پرائمری سے کام ہمارا بیک کمروں تک پہنچانا ہوتا. اچھا, شعیب اختر تو ہمیشہ اس طرح کی فنی باتیں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ آف ہم. نعمان نیاز کو ٹکرنے والا بندہ جو ہے وہ شعیب اختر ہی ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹار بنا دیتے ہیں اور اسٹار کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کرنی ہے. اگر ایک بندہ بے لاگ تبصرہ کرتا ہے اور اگر وہ, چلو ہو سکتا ہے اس میں کافی ساری آمیزش بھی ہو, جھوٹ کی یا ایگزیجریشن کی, ہو سکتا ہے کہ اس نے بیگ پہنچائے بھی ہوں. کیونکہ آئی ہرڈ اباؤٹ دیٹ کہ جب مینیجرز ہوتے تھے پرانے, ان کا کام بیگ بھی پہنچانا تھا اور میٹنگز بھی ارینج کرنا تھا اور بسیں بھی ارینج کرنا ہوتا تھا اور ٹرانسپورٹیشن بھی ارینج کرنا ہوتا تھا. تو وہ نام ایک جو ہے وہ بڑا کریڈیبل نام مینیجر بنا دیا جاتا تھا. ورنہ جیسے ہمارے بڑے شیخ صاحب جو فارمیڈک میں ہمارے CEO تھے, انہوں نے بھی لوگوں کو وہ نام ہی مینیجر نہیں دیتے تھے. انہوں نے مینیجر کی ڈیزگنیشن ہی کمپنی سے ختم کر دی تھی. وہ کہتے تھے نہیں مینیجر نہیں بنانا, مینیجر کو پھر مینیجر کی سیلری دینی پڑتی ہے. So everybody has a reason for appointing people and giving designations. But anyway, شعیب اختر کے اس بیان سے نعمان نیاز کی جو پنجابی میں ہم کہتے ہیں دم تے پیر آ گیا. He could have just let it go. But اس سے جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا گیا اس چیز کو. اور اس کے پیچھے ایک جو پاکستانی فلسفی ہے, ایک کلچر ہے ہمارا پاکستان میں, جو کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ذات پات پہ یقین نہیں رکھتے اور عربی کو اجمی پہ کوئی جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر کا جو ہندو ہے نا وہ نہیں مرا, اور یہی ایک ریزن ہے ہندو سے نفرت کرنے کی بھی پاکستانی مسلمان کی, کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ جا کے ہندو سے ملتی ہیں, اور جہاں سے جڑیں ملتی ہیں وہاں سے جو سارا پرابلم شروع ہوتا ہے. اگر پاکستانی معاشرے میں اگر کسی طوائف نے شادی کر لی ہو پاکستانی یا انڈین میں بھی, اور پھر اس
तवाइफ के बच्चे तीसरी पीढ़ी में भी जाके अपने आप को तवाइफ का बच्चा कहते हुए जो है वो उनको शर्म आती है। ये एक सेपरेट टॉपिक है। तो मैं हिंदुओं को तवाइफ नहीं कह रहा, नाउज़ुबिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज़ से नफ़रत होती है आप उस चीज़ से फिर अपने आप को कनेक्ट करते हुए आपको तकलीफ़ होती है। ये मैंने फाउंडेशन इसलिए ले की है कि मैंने डॉक्टर नुमान नियाज़ के रिस्पांस, क्योंकि वो उसको कोर्ट में लेके जा रहा है, कि इज़्ज़त का दावा कर रहा है और पैसे वैसे मांग रहा है उससे, और कहता है कि मैं कोर्ट में मिलूंगा जाके। पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, एलिजिडली जो बयान मैंने सुना है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात यही है, बैग उठाने में क्या बुराई है, झाड़ू मारने में भी कोई बुराई नहीं है, जूते गांठने में भी कोई बुराई नहीं है। मुसलमानों के मुताबिक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जूते गांठते थे अपने, हज़रत अली भी गांठ के देते थे जूते उनको। तो जूते गांठने में भी कोई बुराई नहीं है, बैग उठाने में भी कोई बुराई नहीं है, ट्रक चलाने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो कल्चर हमने इंपोर्ट किया इंडिया से, जो हम पाकिस्तानी लेके आए हैं, मेंटली वो कल्चर जो है वो हमारे ज़हनों के अंदर बैठा हुआ है। हम हाथ से काम करने वाले लोगों की पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं करते। हाथ से काम से मुराद ये है कि जो लोग प्लम्बर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बैग उठाने वाला हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, ड्राइवर हो गया, इस तरह की जितनी भी जॉब्स हैं, स्वीपर हो गया, चाय ला के देने वाला हो गया, चाय बना के देने वाला हो गया ऑफिस में, ये सारे लोग हैं ये हाथ से काम करने वाले। हम उन सब को जो है वो इन्फीरियर समझते हैं, और यही वो रीज़न है कि जब हम जैसे लोग जो पाकिस्तान से वाइट कॉलर जॉब करते हुए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके हमारे फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि पहले तो हमें अगर किसी स्टोर पे जॉब मिलती है तो वहाँ पे झाड़ू भी मारना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, बाथरूम भी धोना पड़ता है, अकाउंट्स भी करना पड़ता है, फाइनेंस भी करना पड़ता है, बैंकिंग भी करनी पड़ती है, ड्राइविंग भी करनी पड़ती है। तो हम जो होते हैं हम कहते हैं कि यार ये तो नहीं हमसे होगा, मैं तो वहाँ पे मैनेजर था, मैं तो वहाँ पे जनरल मैनेजर था, मैंने तो घर में नौकर रखा हुआ था। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे इमिग्रेट करके आए, उनकी बीवियाँ जो हैं उनको यहाँ पे आके समझ नहीं आ रही कि नौकर नहीं है यहाँ पे, तो नौकर कैसे रखें, $20 पर आवर पे नौकर रखें आप, तो आपकी सारी तनख्वाह तो उधर चली जाएगी। तो हाथ से काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको हम इन्फीरियर समझते हैं, और ब्लू कॉलर पेन से लिखने वाले, ऑर्डर चलाने वाले, डॉक्टर नुमान नियाज़ जैसे लोग जो अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं सो फार, अपनी पेडिग्री की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, डॉक्टर नुमान नियाज़ की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है। हाँ ठीक है, कार्डियोमेटाबॉलिक एक डॉक्टर अपने आप को कहता है, बट वेयर डज ही स्टैंड इन द टॉप 10 डॉक्टर्स कार्डियोमेटाबॉलिक्स ऑफ पाकिस्तान? नोवेयर। अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेना, मैं हमेशा कहता हूँ मैं बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के हिसाब से। तो अक्सर ट्रेनिंग जब मैं करवाता था तो मैं उनको कहता था कि अंग्रेज़ी बोल लेना तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है आपकी, और ना ही आपकी कॉम्पिटेंस की निशानी है, क्योंकि हमारी ज़ुबान नहीं है, ठीक है। हाँ, उर्दू अगर आप बोल रहे हैं और उसमें भी आप जो है वो गलतियाँ कर चले जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। टॉपिक यही है कि नुमान नियाज़ को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है वो ये हुई है कि उसको ये लगा है कि मैं बैग उठाने वाला बंदा बन गया, मैं कोई शूदर बन गया, कि मैं सब कास्ट बन गया, कि मैं कोई लो कास्ट का बंदा बन गया, और मैं डॉक्टर नहीं रहा, मैं जनरल का बेटा नहीं रहा, मैं टीवी का एमडी नहीं रहा, बल्कि मुझे जो है शोएब अख्तर ने इस तरह की बात कर दी। इफ़ यू हैड टेकन इट लाइटली, कुड हैव लाफ्ड इट अवे, हंस के टाल देता, नज़रअंदाज कर देता, कहता है शोएबी तुम ठीक कह रहे हो यार, हम इकट्ठे तो उठाते थे बैग्स, या इस तरह की कोई भी बात कर देता, it could have gone away. Now they are both the laughing stocks. But शोएब अख्तर ने जो बात की है मुझे नहीं पता उसमें क्या हकीकत है, लेकिन ये हकीकत मुझे पता है। इस तरह के मैंने बहुत से इंटरव्यूज सुने हैं पुराने मैनेजर्स के, जिनका बेसिकली काम जो था वो यही होता था, बस अरेंज करवाना, सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना, बैग्स कमरों तक पहुंचाने। हो सकता है डॉक्टर नुमान नियाज़ ने भी ये किया हो, और अगर किया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बिलीव दैट ही वॉज गेटिंग अ फैट पे चेक। तो व्हेन यू आर गेटिंग अ फैट पे चेक तो ऑल इज़ गुड। मुझे याद है मेरे एक बड़े ही स्वीट, बड़े ही प्यारे
मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, इज़्ज़त भी है, उनसीयत भी है। बड़ी देर होगी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इवेंटस में मेरे बॉस थे नासिर अली ख़ान, और फिर हमने हाईमाउंट में भी इकट्ठे काम किया, और उस वक्त जनरल मैनेजर थे, मैं हेड ऑफ़ ट्रेनिंग था। फिर वो ट्रेनिंग में आ गए मैं सेल्स में चला गया, उनकी वो इनडायरेक्टली मेरे नीचे आ गए, और मुझे रोज़ उनको देख के उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती थी सुबह सुबह से ना साहब माफ़ कर दें। तो नासिर साहब ये एक की जब डिमोशन हुई ना जनरल मैनेजर की पोजीशन से, उनको ट्रेनिंग में डाल दिया, ट्रेनिंग मैनेजर। इंतसार सिद्दीकी एक कैरेक्टर थे, वो भी इसी तरह की बातें करते थे। वो उन्होंने ना वो लोगों को जब जलील करना चाहते थे ना, तो वो उनके डेजिग्नेशन चेंज करते थे। ट्रेनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके अंदर के लोगों को डाल दिया जाता था कि चलो जी तुम ट्रेनिंग में रहो जब तक तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस ट्रेनिंग में टिके रहो कुछ देर के लिए, और ट्रेनिंग से जब बाहर आओगे तो फिर तुम्हें कोई जॉब दे देंगे, या जब भूसा ठंडा हो जाएगा तो तुम्हें ट्रेनिंग में से निकाल लेंगे। वो एक बात करते थे, मैंने उनको एक दिन कहा, मैंने कहा ना साहब कैसा चल रहा है? कहने लगे यार पैसे पूरे मिल रहे हैं, मुझे वही सैलरी मिल रही है जो जनरल मैनेजर की मिल रही है, मुझे तो कहीं बाथरूम दो तो मैं ऐसा धोऊंगा बाथरूम के जो हमारे जैनिटर्स और स्वीपर्स हैं वो भी वैसा नहीं धोएंगे। तो जब आपको पैसे पूरे मिल रहे हैं तो काम आप पूरा करें, और ऐसा काम करें कि कोई दूसरा ना कर सके। तो आई लव यू नासिर साहब, ये सबक आपका दिया हुआ जो है वो आज हमें भी याद है, और हम दूसरों को भी देते हैं, और मैं कभी इसको भूला नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सबक था जो आपने दिया था। डॉक्टर नुमान न्याज़ की दुम पे पाँव इसलिए आ गया कि उसको लगता है कि वो कहीं ऊपर यहाँ पे खड़ा था और उसको पुल डाउन करके शोएब अख्तर नीचे ले आया है, उसकी वैल्यूज़ को उसने डिमोलिश कर दिया है, उसकी जो सोशल स्टैंडिंग थी उसको उसने डिमोलिश कर दिया। कहने को तो हम कहते हैं कि हिंदुओं में ज़ात पात है, ब्राह्मण हैं, वेश है, खश्तरी हैं, शूद्र हैं, लेकिन क्या पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तानी मुसलमान इस चीज़ से आज़ाद हो सके हैं या नहीं? ये एक सवाल है जिसका जवाब बहुत से पाकिस्तानियों के पास नहीं है, क्योंकि वो अभी तक उसी कश्मकश में मुब्तला हैं। अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, हिंदू से नफ़रत करते हैं, लेकिन हिंदू कल्चरिज्म और हिंदू फ़िलासफ़ी से हिंदू तो निकल गया है, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान अभी तक नहीं निकल पाया। आज के लिए इतना ही काफ़ी।